آج کی قسط کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب شمسا کے پوچھنے پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ اللہ تمہارے دل کو ضرور اسلام کی طرف بدل دے گا کیونکہ اسی کے پاس اختیار ہے۔ اسی دوران بورو آ کر صلاح الدین کو بازنطینی فوج کی خبر دیتا ہے، جسے سن کر صلاح الدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ محل پہنچنے پر صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں کہ شمسا کے لیے کمرہ تیار کروایا جائے اور خود اجلاس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر شمسا نہایت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، مگر ابھی صلاح الدین کو نہیں بتا سکتی۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس نے صرف شادی کے لیے اسلام قبول کیا۔ اجلاس میں صلاح الدین کہتے ہیں کہ بیلین نے دمیت کی کارروائی کے لیے ان کی توجہ رملہ کی طرف مبذول کرائی ہے۔ قاضی فاضل جواب دیتے ہیں کہ دمیت کو کھونا قاہرہ کو دشمنوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ صلاح الدین ایاز سے کہتے ہیں کہ وہ فوراً فوج تیار کرے کیونکہ وہ دمیت جانے والے ہیں۔ اس پر ایاز کہتا ہے کہ غداری کی وجہ سے ان کے پاس فوج بہت کم رہ گئی ہے۔ صلاح الدین انہیں تسلی دیتے ہیں کہ جنگ میں فوج کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا اور وہ کارا تیگن کو قاہرہ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپتے ہیں۔ قدس میں لارڈ گائے امارلک کو بازنطینی بحریہ کے پہنچنے کی خبر دیتا ہے۔ امارلک کہتا ہے کہ یہ تو کھیل کی شروعات ہیں۔ اسی دوران بالڈون امارلک کے پاس سبیلا کا چھوڑا ہوا خط لاتا ہے۔ امارلک اس خط کو پڑھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے، مگر بالڈون کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جلد ہی سب کچھ واپس لے آئے گا۔ دوسری طرف قاہرہ میں صلاح الدین کے پوچھنے پر لطیف بتاتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دوا سے جذام یعنی کوڑ کے مرض میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، لیکن مکمل علاج ممکن نہیں۔ خلیل مشورہ دیتا ہے کہ بالڈون کی اس بیماری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین اسے سختی سے ڈانٹ دیتے ہیں۔ خلیل شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیتا ہے۔ صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں کہ امارلک کو فوراً بالڈون کی بیماری کے بارے میں اطلاع دی جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ ان کے پاس ایک ماہر معالج موجود ہے۔ پھر وہ جنگ کی تیاری مکمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ صلاح الدین خلیل کو گھورتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس پر قاضی فاضل مسکرا کر کہتے ہیں کہ انہیں ایک نیک وزیر کی تربیت پر فخر ہونا چاہیے۔ ادھر قدس میں امارلک لارڈ گائے کو ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سبیلا کو واپس لایا جائے۔ ولیم پریشانی سے کہتا ہے کہ وہ بالڈون کے لیے بہت فکر مند ہے۔ ماریا بول اٹھتی ہے کہ وہ بس اپنی بہن کی جدائی میں تڑپ رہی ہے، اس لیے سبیلا کو جلد از جلد واپس لانا چاہیے۔ یہ سن کر امارلک فوراً اس کا منہ بند کروا دیتا ہے۔ دوسری طرف قاہرہ میں فاطمہ خاتون شمسا کو دیکھ کر خوشی سے مسکرا اٹھتی ہیں۔ اسی وقت صلاح الدین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد ہی ان کی شادی ہونے والی ہے۔ فاطمہ خاتون خوشی سے مبارکباد دینے لگتی ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ قاضی فاضل ہاتھ دینے سے انکار نہیں کریں گے اور شمسا اور فاطمہ خاتون دعا کے ساتھ انہیں دمیت کی جنگ کے لیے رخصت کریں گی۔ محل سے باہر نکل کر صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں کہ چونکہ میلا محل میں موجود ہے، اس لیے شاتلیون کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی وہ حکم دیتے ہیں کہ شہر میں وزیر اور شمسا کی شادی کا اعلان کر دیا جائے۔ اتنے میں یارو کی فوج کے دمیت پہنچنے کی خبر کہہ کر آتا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتے ہیں کہ شادی کی خبر شام تک پہنچانے کے لیے ایک موزوں شخص خود آ گیا ہے۔ ایک اور منظر میں میلا سو رہی ہوتی ہے کہ شمسا آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اپنا خنجر نکال لیتی ہے۔ اسی لمحے میلا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شمسا ایک بچھو مار کر کہتی ہے کہ ان دنوں محل میں بہت سے بچھو ہو گئے ہیں۔ میلا اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے، مگر شمسا پرسکون لہجے میں جواب دیتی ہے کہ غلط جگہ پر وہ نہیں بلکہ تم ہو۔ وہ جس سے مخاطب ہے وہ محل کے وزیر کی ہونے والی بیوی ہے۔ یہ سن کر میلا سخت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب بالڈون اور سبیلا ایک دوسرے کے ساتھ خوش دکھائی دیتے ہیں کہ اتنے میں لارڈ گائے آ جاتا ہے۔ وہ امارلک کا پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سبیلا کو فوراً واپس جانے کا حکم ملا ہے۔ سبیلا مزاحمت کرتی ہے، مگر ولیم کہتا ہے کہ وہ سبیلا سے محبت کرتا ہے اور اسے خود قدس واپس لے جائے گا۔ کچھ میں امارلک ولیم کو بتاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ بالڈون کی سبیلا کے لیے محبت کو آزمانے کے لیے کیا تھا۔ اگر بالڈون اس امتحان میں کامیاب ہوتا تو وہ خود ان کی شادی سبیلا سے کر دیتا۔ دوسری طرف دمیت میں بوروس صلاح الدین کے پاس خبر لاتا ہے کہ دمیت صلیبی فوج کو روکنے میں ناکام رہا ہے اور ان کا اگلا ہدف قاہرہ ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ شام سے سلطان کی فوج پہنچنے تک انہیں بازنطینیوں کی توجہ ہٹانی ہوگی۔ ادھر شام میں سلطان نور الدین کو خبر ملتی ہے کہ دمیت پر صلیبی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور ان کا اگلا ہدف قاہرہ ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان غصے میں آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ خود صلاح الدین کی مدد کے لیے فوج کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ قدم سامنے بڑھاتے ہوئے وہ لڑکھڑا جاتے ہیں تو سب لوگ پریشانی سے آگے بڑھتے ہیں۔
लेकिन सुल्तान मुस्कुराकर कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं और फौज की रवानगी की तैयारी शुरू की जाए। दूसरी तरफ जंगल में शातलियून कमांडर सिंघारियोस से कहता है कि उसकी फौज की मदद से वो जल्द ही दिमित पर काबिज हो गए हैं। वो फख्र से कहता है कि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो वो बहुत जल्द तमाम इस्लामी रियासतों पर कब्जा कर लेंगे। इसी दौरान बालीन सिबेला के साथ वहां पहुंचता है और अमारलीक से कहता है कि वो सिबेला से मोहब्बत करता है और अपनी मर्जी से उससे शादी करना चाहता है। अमारलीक मुस्कुराकर कहता है कि ये एक इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब हो गया है। फिर वो हुक्म देता है कि काहिरा की जंग में उसके शाना बशाना लड़ेगा। दूसरी जानिब काहिरा के महल में मीला काजी फाजिल से कहती है कि वो सलाहुद्दीन से मिलना चाहती है। काजी फाजिल बताते हैं कि सलाहुद्दीन इस वक्त महल में मौजूद नहीं है। मीला महल से बाहर जाने की इजाज़त मांगती है, जिस पर काजी फाजिल इजाज़त देते हैं, लेकिन ताकीद करते हैं कि वो चेहरा ढांप कर जाए ताकि उसे देखकर कोई बदगुमानी पैदा ना हो। साथ ही वो एक सिपाही को हिदायत देते हैं कि मीला पर नज़र रखे। दिमित में सलाहुद्दीन अपने साथियों को जंगी मंसूबा समझा रहे होते हैं। इसी दौरान एक मंजर में कमांडर शातलियून को खबर मिलती है कि सलाहुद्दीन के सिपाहियों ने उनकी फौज के अगले हिस्से पर हमला कर दिया है। सिंघारियोस कहता है कि फौरन जवाबी हमला किया जाए, मगर शातलियून संजीदगी ही जवाब देता है कि ये एक जाल है। कुद्स में मार्कोस बालीन को सलाहुद्दीन का खत देता है, जिसमें बॉल्डविन की बीमारी की तशखीस और ये बताया गया होता है कि लतीफ इस बीमारी के इलाज के लिए काफी अरसे से काम कर रहा है। बॉल्डविन मार्कोस से जंग की तैयारी मुकम्मल करने का कहकर खुद महल के अंदर चले जाते हैं। महल में अमारलीक अपने लाडगाहे से कहता है कि उसके जज्बात के साथ खेलने पर वो अफसोस महसूस करता है, मगर आखिरकार यही उसका फैसला होता है। बोरो आकर बताता है कि उन्होंने सलाहुद्दीन के हुक्म के मुताबिक सलेबियों के अगले दस्ते पर हमला कर दिया है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि अब उन्हें फौरन काहिरा लौट जाना चाहिए। जंगल में शातलियून सलाहुद्दीन को कोसते हुए कहता है कि वो दोबारा फौज जमा करेंगे और काहिरा पर हमला करेंगे। शाम में सुल्तान जिहाद की तैयारी कर रहे हैं और उमर मल्ला कहता है कि वो थके हुए महसूस होते हैं, इसलिए उन्हें आराम चाहिए, मगर सुल्तान जवाब देता है कि जब तक रूम में जान है उन्हें जिहाद जारी रखना चाहिए। कुछ में विलियम सिबेला से कहता है कि मारिया और लाडगाय के इरादे तख्त के हवाले से दुरुस्त नहीं हैं। दूसरी तरफ बॉल्डविन इस सिपाही के साथ तलवारबाजी सीख रहा होता है। बालीन पहुंचता है और कहता है तलवार उठाओ, मगर बॉल्डविन के हाथ से तलवार बार बार गिर जाती है। बॉल्डविन परेशान होकर कहता है कि उसे अपने हाथ में कमजोरी महसूस हो रही है, जैसे अब वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो बालीन से कहता है कि उसके हाथ पर तलवार का जोर डाले। जब बालीन दबाव बढ़ाता है और बॉल्डविन को कोई दर्द महसूस नहीं होता, तो दोनों समझ जाते हैं कि सलाहुद्दीन की तशखीस दुरुस्त थी। बॉल्डविन वाकई जुजाम यानी कोड़ में मुब्तला हो चुका है। उसी लम्हे सिबेला वहां आती है और हैरत से पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? बालीन संजीदगी से जवाब देता है कि उसे सिबेला से अकेले में एक जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ काहिरा में मेला चेहरा छुपाए महल से बाहर जा रही होती है कि अचानक सायरा उसे पहचान लेती है। सायरा के पूछने पर मेला कहती है कि वो शातलियून के शर से बचने के लिए काहिरा में मौजूद है। सायरा उसे बताती है कि काहिरा पर दुश्मनों का हमला होने वाला है, मगर मेला जाने के बजाय खामोशी से वहां रुक जाती है। इधर कुछ में बालीन बॉल्डविन की बीमारी की खबर अमारलीक को देता है। ये सुनकर अमारलीक पर जैसे कयामत टूट पड़ती है। विलियम कहता है कि बॉल्डविन को फौरन आराम देना जरूरी है। अमारलीक सदमे की हालत में बॉल्डविन के पास जाता है, जो खामोशी से कुछ लिखने में मसरूफ होता है। बाप को हवास बाख्ता देखकर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं, वो इतना बहादुर है कि उसे दर्द का एहसास तक नहीं होता। अमारलीक उसका दिल थामने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ कमजोर पड़ जाते हैं। अमारलीक का दिमाग भी घबरा जाता है और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। सिबेला फौरन उसके पास पहुंचकर उसे सहारा देती है और बॉल्डविन और बालीन से कहती है कि महल में सारी दुनिया के तबीबों और कीमती अद्वियात लाई जाएं। वो विलियम और बॉल्डविन से भी यही हुक्म देती है। उधर जंगल में कमांडर सिंघारी परेशान है कि उनके रास्ते में आने वाले कुएं या तो पथरीले हैं या जहर आलूद, और अमारलीक ने भी फौज भेजने में काफी देर कर दी है। शातलियून कहता है कि इस वक्त उनकी मदद सिर्फ ताजिर राकफ की बेटी ही कर सकती है। काहिरा में सलाहुद्दीन अवाम से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कोई तलवार उठाएगा और कोई पानी और खाना मुहैया करेगा। वो बाय बोरा को हिदायत देते हैं कि बच्चों और खवातीन के लिए पनागाहें फौरन तैयार की जाएं। इतने में मीरा वहां पहुंचती है और सलाहुद्दीन से कहती है कि हालात के बिगड़ने की सूरत में वो उसे उस शख्स के हवाले कर सकते हैं जो फौज की क़यादत कर रहा है और जल्द ही काहिरा पर हमला करने वाला है। सलाहुद्दीन संजीदगी से जवाब देते हैं कि वो औरतों को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करते। फिर कहते हैं कि जब तक वो काहिरा में हैं, उनकी हिफाजत उनके जिम्मे है। दूसरी तरफ ताजर आसिफ सायरा को शातलियोना का पैगाम देता है। ये सुनकर सारा कहती है कि पानी उन्हें जरूर पहुंचाएंगे।
इसी दौरान इलियास अपने साथियों से कहता है कि वो बड़ी मुश्किल से खुद से जान बचाकर निकले हैं और अगर अब काहिरा से भी निकाल दिया गया तो उनके पास कोई पनाहगाह नहीं बचेगी। इतने में बोरो वहां पहुंचता है और इलियास से कहता है कि उसके पास उसके लिए काम है, मगर खबरदार, अगर उसने जरा सा भी धोखा दिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ महल में एक मुआलिज बॉल्डविन को दवा लगा रहा होता है। अमार लेक के पूछने पर वो बताता है कि इस मर्ज के असल माहिर मुआलिज इस्लामी रियासतों में पाए जाते हैं, मगर उसके पास वो मौसर रवायती दवा मौजूद नहीं है। बॉल्डविन कहता है कि सलाहुद्दीन के महल में एक तबीब है जो जुजाम यानी कोड़ के इलाज में माहिर है। ये सुनते ही अमार लेक शक के लहजे में कहता है कि शायद वो बॉल्डविन की बीमारी को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लिहाजा अमार लेक फैसला करता है कि तबीब की भीख मांगने के बजाय वो खुद उसे सलाहुद्दीन के महल से लेकर आएगा। दूसरी तरफ काहिरा में इजलास के दौरान मौजू ये उठता है कि शुमाली दीवार की तामीर अभी नामुकम्मल है और वही दुश्मन के दाखिले का सबसे कमजोर मकाम है। सलाहुद्दीन कायरती गन की राय से इत्तेफाक करते हैं और हुक्म देते हैं कि सिपाही दीवार के आगे गहरी खंदक खोदें ताकि दुश्मन के लिए रास्ता मजीद मुश्किल हो जाए। वो मजीद कहते हैं कि खंदक की मिट्टी ढीली रखी जाए ताकि अगर कोई उस पर चढ़ने की कोशिश करे तो फौरन धंस जाए। इस दौरान तमाम ताजिर और दरबारी शमसा खातून से मुआफ़ी मांगते हैं और उनकी शादी पर मुबारकबाद देते हैं। सायरा भी रुककर शमसा को मुबारकबाद देती है और अपना तारुफ करवाती है। एक लम्हे के लिए शमसा को शक सा होता है कि ये वही लड़की है जिसने खलीफा की दवा में रद्दोबदल किया था। इसी वक्त ताजर आसिफ सायरा के पास आकर इत्तला देता है कि पानी के बैरल हुक्म के मुताबिक मुकम्मल तैयार कर लिए गए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मेगा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल नूर रिकैप्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें।